students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kana Makhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from our home to your home. For 11th standard business studies, the chapter that we were continuing in our previous video, that was formation of company. In the formation of company, we studied about that the companies in India goes by Indian Companies Act 2013. यानी कि there is a particular legislation to govern the companies in India if we talk about a joint stock company. ठीक है, and not only joint stock company legislation, as per the Indian Companies Act 2013, for the formation of company there are 3 stages of formation of company. The very first stage was promotion, second stage was incorporation, and third stage is subscription of capital. Third stage is subscription of capital. ठीक है, so in our previous video we have already covered up about what exactly a promotion is. Promotion is the process of shaping the idea of a business to its practical shape. यानी एक आइडिया को आइडिया से उठा करके प्रैक्टिकली शेप देने का काम था. That process was in the promotion, and the person who does all these activities called as promoter. And promoter में हमने जाना promotion में क्या क्या activities रहती हैं, promoter के functions क्या हैं, name approval, idea feasibility, name and so on. ठीक है, उसके अलावा हमने जाना अब तक legal documentation, what are the legal documentation that we'll have to do, and the legal documentation required while the formation of company is, दो document हमें एक legal जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी की बिगनिंग के लिए, वो थे आपके MOA एंड AOA. MOA stands for Memorandum of Association, and AOA stands for Article of Association. ठीक है, not only we studied about Memorandum of Association and Article of Association, we also studied about what are the clauses, what are the legal documents which are part of MOA and AOA. ठीक है, and these are the documents which are required for the incorporation of the company. After the first stage promotion, these 2 documents are filed with registrar of the companies, and जब promotion का काम जो है वो fulfill हो जाता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके बन जाते हैं, आप डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप प्रोफेशनल्स को हायर कर लेते हैं. इसके बाद प्रमोटर का एक फंक्शन है क्या, यहाँ से प्रमोटर क्या करता है, यहाँ से प्रमोटर एक एप्लीकेशन फाइल करता है. यहाँ से प्रमोटर क्या करता है, एक एप्लीकेशन फाइल करता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इट दिस पर्सन फाइल्स, this person promoter files one application of incorporation to whom, to the registrar of company, to the registrar of companies. ठीक है, अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन टर्म का मतलब समझ लेते हैं. इनकॉर्पोरेशन टर्म का मतलब क्या है. अब इनकॉर्पोरेशन जो टर्म है वो टर्म आपका निकल के आया है इंग्लिश के वर्ड इनकॉर्पोरेट से. एंड इनकॉर्पोरेट टर्म का मतलब होता है पूल करना, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज दैट वी हैव डन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर कंपनी, इन दिस प्रोसेस हम उन रिसोर्सेज को एक साथ पूल करते हैं, यानी कि सारी चीजों को एक साथ लेकर आते हैं. ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फाइल करता है प्रमोटर इन रजिस्टर ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन. And for the incorporation, that application comprises of some of the documents, and what documents are needed for the incorporation of company, that we will see here. The very first requirement
of filing the application for the incorporation is the sorry, the very first required document is the MOA. ठीक है, यानी कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की. ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी ऐसे नहीं होता, इट मस्ट बी साइंड. ठीक है, ये डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होना चाहिए. और डायरेक्टर्स के द्वारा साइन कैसे होनी चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स के साइन इस पे होंगे. और अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के साइन इस पे होंगे. सो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट while submitting the application for incorporation is the memorandum of association that must be duly signed by directors in case of public company 7 and in case of private 2. ठीक है, the very first thing is memorandum of association. Second जो requirement है वो है आपकी article of association, AOA. ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अलावा कुछ केस में अगर कंपनी के पास प्रोस्पेक्टस है तो वहां पे प्रोस्पेक्टस भी फाइल जो है वो हो सकता है. अब इन चीजों के अलावा सबसे पहला हमारा हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हमारा हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी है वो है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स. कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो भी डायरेक्टर्स कंपनी ने हायर किए हैं, जब प्रमोटर ने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सिग्नेटरी अथॉरिटीज को हायर किया था, उनको सब्सक्रिप्शन शेयर परचेज करवा के, तो वो लोग थर्ड डॉक्यूमेंट में अपना कंसेंट देते हैं दैट दे हैव परचेज द सब्सक्रिप्शन कैपिटल एंड दे आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड विद देयर कंसेंट दे आर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो थर्ड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, एंड फोर्थ जो डॉक्यूमेंट आएगा इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन में वो होगा हमारा एग्रीमेंट्स. यानी कि कंपनी अगर किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स में आ रही है, वो एग्रीमेंट्स एमडी के साथ हैं, वो वो एग्रीमेंट इन डायरेक्टर्स के साथ हैं, उन एग्रीमेंट्स को यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा इन द इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन. अगर आप यहाँ पे नहीं शो करते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये आपके असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स. एंड फोर्थ जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको एग्रीमेंट शो करने पड़ेंगे. एंड फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट आएगा आपका, फिफ्थ डॉक्यूमेंट आएगा वो डॉक्यूमेंट इन दैट द रजिस्ट्रार हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ कंपनी. यानी कि आपको ध्यान हो अगर तो प्रमोटर के फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन था, सबसे आई थिंक थर्ड फंक्शन था आपका नेम अप्रूवल. तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं इन दैट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ कंपनी. ठीक है, पहला आपने एमओए सबमिट किया, सेकंड आपने एओए सबमिट किया, थर्ड आपने कंसेंट ऑफ डायरेक्टर सबमिट कर दिया, फोर्थ आपने एग्रीमेंट सबमिट कर दिए, फिफ्थ आप करेंगे क्या, रजिस्ट्रार ने जिस डॉक्यूमेंट पे नेम अप्रूवल किया था उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करते हैं यहाँ पे अपने इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन में. एंड इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं दैट इज द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, ये आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का. मींस स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मींस जहां पे ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी पार्ट था. ठीक है, वही एग्जैक्टली स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा. यानी कि इन विच यू डिक्लेयर दैट ऑल ओवर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड एंड प्रपोज्ड आर ट्रुथ एंड बेस्ट एज पर योर नॉलेज. यानी यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि आप जो भी चीजें सबमिट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें सही हैं, उनमें कोई भी आपने डॉक्यूमेंट फोर्स्ड नहीं किया है. ठीक है, इसके बाद सातवां जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आप, वो क्या करते हैं, परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑफिस.
आप लोगों को अगर ध्यान हो, जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल कर रहे थे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते में वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कह रहा था कि आपको परमानेंट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, आप केवल उस स्टेट का नेम दे दीजिए एंड उसके 30 दिन के अंदर आपको वो परमानेंट ऑफिस एड्रेस फाइल करना पड़ेगा, यानी सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट देंगे, आप देंगे परमानेंट एड्रेस प्रूफ ऑफ योर कंपनी, जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, हेडक्वार्टर्स होंगे, आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा। एंड जो लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो क्या होगा? लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट, यानी कि फी रिसीप्ट, यानी आपने जो पेमेंट किया है आप उस पेमेंट की रिसिप्ट भी यहां पे जो है वो सबमिट करते हैं। इतना सारा सबमिशन के बाद जो रजिस्ट्रार है बहुत केयरफुली इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है एंड उसके बाद उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद क्या होता है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है। द डे ऑन विच द incorporation certificate is issued to a company is known as the birth डे ऑफ दैट कंपनी, यानी जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसी को हम कंपनी का बर्थडे कहते हैं। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जो कंपनी को इशू किया जाता है इस एप्लीकेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को हम बर्थ कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के तुरंत बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कमेंस कर सकती है, शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनीज के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं, पब्लिक कंपनीज के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं क्या? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहां पे कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत दी जाती है तो देखिए, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू चेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन। The duty of registrar is just to check whether all these columns are given or not, यानी इन सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन हुआ है या नहीं। और अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज किया गया है, यानी उस डॉक्यूमेंट पे गलत साइन किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट किया गया है, तब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट मानी जाएगी, कंपनी का बर्थ माना जाएगा। ठीक है, अब पहले तो आपका केवल इनकॉर्पोरेशन से काम चल जाता था, लेकिन अब इनकॉर्पोरेशन में 1 नवंबर 2000 से, यानी कि पहले क्या था, केवल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से काम चल जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि 1 नवंबर 2000 से, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक नंबर भी देता है एक कंपनी को, इनकॉर्पोरेशन नंबर, वो होता है CIN, एंड CIN स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, ये CIN कब से इशू होता है? CIN इशू हो रहा है आपका 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, तो ये था आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बाद कोई भी कंपनी जो है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, और कंपनी की बर्थ डेट वो मानी जाएगी जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में गिवन है। अब जैसे सपोज कीजिए आपने 6 जून को इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन दी है और आपको जो डॉक्यूमेंट मिला है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको मिला है 8 जनवरी को। 6 जनवरी को आपने दिया, 8 जनवरी को आपको मिल गया।
और उसमें जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट डल रही है वो 6 जनवरी डल रही है। तो आपकी कंपनी का बर्थ 8 जनवरी को नहीं हुआ, आपकी कंपनी का बर्थ 6 जनवरी को ही हो गया था, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट डल रही है वो 6 जनवरी की डल रही है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर कोई फॉर्जरी भी करता है, इसमें गलत सिग्नेचर यूज करता है या कोई गलत डॉक्यूमेंट देता है, तो उस केस में रजिस्ट्रार को ये चेक करने की ड्यूटी नहीं है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो जाएगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी। ठीक है। यानी कि इनकॉर्पोरेशन उसका कैंसिल नहीं किया जा सकता, इन द केस उस कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं इस लेजिस्लेशन के अंदर, कोई भी चीज इस लेजिस्लेशन के बाहर नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हमने जाना डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, हमने इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन एंड उसके अंदर जितने भी कॉलम्स थे उनके बारे में जाना, एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का क्या इफेक्ट होता है एक कंपनी पर। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज आपकी हैं स्टूडेंट्स, तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द क्वेरी सेशन एंड इन द कमेंट बॉक्स टू। इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज हम देखेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम।